شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جمعہ کا مقصد تعلیم و تربیت ہے۔ 6 دن کے بعد جمعہ آتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے، دین بتایا جائے، دین سمجھایا جائے، تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، انہیں پتہ چل جائے، اور جن لوگوں کو پتہ ہے وہ غفلت میں ہے، وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں اور دین کے فیوز و برکات سے ہم بہرہ مند ہو سکیں۔ مقصد آدھا پونا گھنٹہ وقت گزاری نہیں ہوتا، مقصد دین کو سیکھنا ہے۔ دین آیا آسمان سے اللہ کی کتاب قرآن میں، دین قرآن میں موجود ہے، سارا دین یہی ہے جو قرآن میں ہے، اور اسی کی تعلیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دی۔ وہ کوئی علیحدہ نہیں تھا، قرآن سے ہی دین امت کو عملی طور پر کر کے سکھایا اور دکھایا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک معاشرتی پہلو ہے، دینی حوالے سے بھی، معاشرے کے حوالے سے بھی، دنیاوی حوالے سے بھی، جس میں ہم دین کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دین کو پشت کر کے دین کی طرف لاپرواہی کا شکار ہو کر ہم رسوم کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو رسموں کے بندھن میں باندھ لیا ہے اور دین سے لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں، اور رسمیں بھی وہ جو ہندوانہ رسمیں ہیں ان کا شکار ہو گئے ہیں اور دین سے غافل ہو گئے۔ وہ رسمیں دین سے ٹکرا رہی ہیں۔ ایک تو ایسی بات ہے کہ دین سے کوئی چیز ٹکراتی نہیں، الگ ہوتی ہے، دین کو نقصان نہیں پہنچاتی، آپ کر لیتے ہیں، فابہا مباحات میں آتی ہے۔ اور ایک چیز ہے جو دین سے ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کرتی ہے، وہ دین کو نقصان پہنچاتی ہے، دین کو چیلنج کرتی ہے۔ مسلمان آج کا اس بات کو، دین کو چھوڑ کر اس چیلنج کو قبول کرتا جا رہا ہے۔
आयत नंबर 34 सूरह निसा की अल्लाह फरमाते हैं अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर कव्वाम हैं। कव्वाम किसको कहते हैं, मैं आपके सामने उसकी तारीफ रख देता हूं, फिर बात को मजीद आगे लेकर चलते हैं। कव्वाम डिक्शनरी की किताबों में, अरबी डिक्शनरी की किताबों में जो कव्वाम की तारीफ है उसमें 3 बातें हैं कि ऐसा शख्स जो किसी फर्द के बारे में, किसी इदारे के बारे में या किसी निजाम के बारे में उसके मामलात चलाने, उसकी निगहबानी और निगहदाश्त करने, हिफाजत करने और उसकी जरूरियात पूरी करने का पूरा जिम्मेदार होता है, उसको कव्वाम कहते हैं। मैं आपके सामने रख देता हूं, सैयद अबू अल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह तफहीमुल कुरान में लिखते हैं कि कव्वाम या कय्यम किसको कहते हैं, उस शख्स को कहते हैं जो किसी फर्द या इदारे या निजाम के मामलात को दुरुस्त हालत में चलाने और उसकी हिफाजत व निगहबानी करने और उसकी जरूरियात मुहैया करने का जिम्मेदार हो। दूसरे लफ्जों में कव्वाम जिम्मेदार को कहते हैं कि यही असल में जिम्मेदार है, चाहे किसी इदारे को, किसी निजाम को, किसी घर को, किसी मामले को चलाए, उसकी जरूरियात पूरी करे, उसकी हिफाजत करे, सारी जिम्मेदारी इस पर है। अब मैं आता हूं वापस आयत के तर्जमे की तरफ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, सूरह निसा की आयत नंबर 34 कि मर्द औरतों के जिम्मेदार हैं, हुक्मरान हैं, सिरदार हैं, निगहबान हैं। तो जिम्मेदारी किस पर है, मर्दों पर है, मर्द जिम्मेदार हैं। और ये किसने जिम्मेदारी दी है, अल्लाह ताला ने दी है। ये मर्दों ने वोटों से जिम्मेदारी नहीं ली है, या बजोरे बाजू नहीं ली है, या तलवार की और असले के बलबूते पर नहीं ली है, या फराड करके नहीं ली है। ये रब्बे कायनात ने जिम्मेदारी सौंपी है कि औरत मर्द के मुआशरे में जिम्मेदार मर्द है, कव्वाम। अब जब औरत और मर्द इकट्ठे होते हैं निकाह के बंधन में, शादी होती है तो एक घर बसता है, उस घर की बात हो रही है। उस घर के सारे मामलात, वो कैसे चलेगा, कैसे लेन देन करेगा, कहां आना जाना है, कौन आएगा कौन जाएगा, किस से तल्लक रखना है, किस से तल्लक नहीं रखना, ये सारे मामलात चलाने की जिम्मेदारी किस पर है, मर्द पर है। नंबर 1 मामलात। नंबर 2 उसकी निगहबानी, निगहदाश्त और हिफाजत। घर की निगहबानी, निगहदाश्त और हिफाजत का जिम्मेदार भी मर्द है। और नंबर 3 घर की जरूरियात पूरी करने का जिम्मेदार भी मर्द है। जब ये तीनों काम मर्द करता है तो अल्लाह ताला ने मर्द को उस घर की सरबराही बख्शी। वो घर मर्द का है। खुदा नखास्ता अब निकाह करके बंदा ला रहा है तो औरत को उस घर में ला रहा है, और खुदा नखास्ता तलाक देता है तो औरत उस घर से निकल जाती, घर इसी का है। तो उस घर को बसाने और आबाद करने की जिम्मेदारी किस पर है, मर्द पर है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, चाहे तो उसके मामलात हैं तो मर्द की मर्जी से चलेंगे, चाहे तो उसकी हिफाजत जिम्मेदारी है तो मर्द की जिम्मेदारी है, चाहे तो उसकी जरूरियात पूरी करनी है तो वो सारी मर्द के जिम्मे है। और जब ये सब कुछ मर्द के जिम्मे है तो जहेज औरत के जिम्मे कहां से आ गया फिर? यही मेरा आज का मौजू है, ये मुआशरती पहलू है, और इसी पर आज मैं बात करना चाहता हूं कुरान और सुन्नत के हवाले से कि वो इस्लाम में 2 ही खर्चे हैं। शादियों में बहुत ज्यादा हो गए ना, हम कहते हैं जबानी, तो हम कहते हैं इस्लाम ने निकाह को आसान किया, ये कहते हैं ना हमने, इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, जना को मुश्किल बनाया है।
उस पर 100 कोड़े कम अज कम या पत्थर मार मार कर जान निकाल दो, सजा है जना की। और निकाह को इतना आसान किया कि 2 ही खर्चे रखे, एक फर्ज है एक सुन्नत है, दूसरा ना भी करो तो एक में गुजारा हो जाएगा, सिर्फ एक खर्चा। कौन सा? हक महर का, सिर्फ एक खर्चा रखा। इस्लाम ने सिर्फ एक खर्चा रखा कि अगर औरत मर्द लड़की लड़के ने शादी करनी है तो उसका सिर्फ एक ही खर्चा है, और वो औरत के जिम्मे है या मर्द के जिम्मे है? कि घर मर्द का है, कव्वाम है। अल्लाह कह रहा है अर्रजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के कव्वाम है, निगहदार हैं, निगहदाश्त करने वाले हैं, मुंतजिम हैं, इंतजाम करने वाले, उनके मामलात चलाने वाले हैं, उनकी हिफाजत करने वाले, उनकी जरूरियात पूरी करने वाले हैं। क्या वो मर्द जिसके जिम्मे अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई कि औरत की जरूरियात तूने पूरी करनी है, वो तो निकाह से पहले ही साबित कर चुका कि मेरे में अहलियत नहीं, जब वो जहेज मांग रहा है, जब वो इतना जहेज ले रहा है, घर बसाना इसकी जिम्मेदारी थी, औरत की जिम्मेदारी नहीं थी। औरत तो लेने वाली है, उसका हक महर अल्लाह ने कहा उसको कुछ देना है। तो ये तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया इलेक्शन लड़ने से पहले। वो पता है आपको, इलेक्शन से पहले दरखास्तें होती हैं कैंडिडेटों से इलेक्शन से, और एक दफ्तर में जब वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जब वो कैंडिडेट दरखास्तें देते हैं तो वो इब्तदाई तौर पर उनसे कुछ सवालात करते हैं, और मुसलमान कैंडिडेट MNA MPA सेनेट का इलेक्शन लड़ने वाले कभी तो दुआए कनूत में फेल हो जाते हैं, कभी तीसरे चौथे पांचवें छठे कलमे में फेल हो जाते हैं। ये हाल है हमारे इस्लाम का। हम जो इस्लाम के ठेकेदार बना, हम तो कलंक का टीका है इस्लाम के माथे पर। हमने इस्लाम को इज्जत नहीं दी, हमने इस्लाम को रुसवा किया है। इस्लाम को इज्जत दी थी सहाबा ने। इस्लाम को इज्जत उन्होंने दी जिन्होंने इस्लाम को अपनी जिंदगी का अमल बना लिया, जिन्होंने अपने जीना मरना इस्लाम के नाम कर दिया, उन्होंने इस्लाम को इज्जत दी थी। और यहां पे तो जनाब साहब बहादुर, जिसका घर बस रहा है, वो बर्तन भी बीवी से ले रहा है। अल्लाह ने इसको मर्द बनाया। अरे इससे तो बेहतर था औरत तुझे बना देता, तो फिर क्या करता? अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया। खास तौर पे जिनके बेटे हैं उनके लिए आज का पैगाम है, खास तौर पे जिनके बेटे हैं उनके लिए पैगाम है कि शरीयत क्या कहती है, उनकी शादियां कैसे करनी है। इस्लाम ने एक ही खर्चा फर्ज किया है शादी में, वो है मर्द के जिम्मे, लड़के के जिम्मे के लड़की को हक महर दे। और दूसरा खर्चा है वलीमा का, वो सुन्नत है, कर ले तो सुन्नत, ना करे तो गुजारा हो जाएगा। एक ही खर्चा है। अहयाल उलूम में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने पिछले से पिछले जुमे कहा था ना कि निकाह करना बड़ा आसान है, ऐसी ब्लैकमेल ना होना मौलवियों से इतने हजारों में। तो मैं इत्तफाकन पढ़ रहा था तो वही मौजू आ गया, वही मौजू जो मैंने कल में आपसे कहे थे वही आ गया। इमाम गजाली ने अपनी किताब अहयाल उलूम में लिखा है कि निकाह का तरीका क्या है, कि जो अपनी बेटी का निकाह कर रहा है वो सामने दूल्हे से कहता है ज़व्वजतु का इब्नतैया फलानतन, मैं अपनी बेटी फलां, उसका नाम लेकर का तेरे साथ निकाह करता हूं। इससे पहले कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह ज़व्वजतु का इब्नतैया फलानता, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह, मैं अपनी फलां लड़की का निकाह तेरे साथ करता हूं। और वो दूल्हा क्या कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह कबल तो निकाह हा बे महरन कजा,
میں اس لڑکی کا نکاح قبول کرتا ہوں اتنے حق مار کے بدلے میں. باپ نے بیٹی کی آفر دی، اس نے قبول کر لیا، 2 گواہ موجود تھے، مہر کا ذکر آ گیا، نکاح مکمل ہو گیا. آسان کیا نکاح کو یا مشکل بنایا دین نے؟ اتنا آسان. ویسے آج کل کے جو میرے جیسے مولوی ہیں وہ تو کسی کو ذبح کرنا نہیں بتاتے کہ مرغی ذبح کرنی ہے، اس کو بتا دی تو پھر میرا محتاج نہیں رہے گا. یہ ہمارا آج کل کا ہے نا. ہم نے دین کو پھیلانے کی بجائے اس کو تنگ کیا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. دین تو پھیلانا ہے، تبلیغ کرنی ہے. تو شادی بیاہ کا صرف ایک خرچہ ہے اور وہ خرچہ مرد کے ذمے، عورت کے ذمے نہیں ہے. باقی رہا جو کچھ ہو رہا ہے شادیوں میں. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا ہندوانہ رسمیں، یہ جہیز، منگنی، مہندی، تیل، گڈولی، مانجھا، بری اور رت جگہ، جتنی بھی رسمیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں. اور اگلا سوال اہم یہ ہے کہ رسمیں ہندوؤں کی ہیں، اسلام میں یہ رسم کوئی نہیں. اسلام تو کہتا ہے کہ 2 گواہ ہوں، حق مہر کا تعین کر کے لڑکی لڑکا قبول کر لیں، نکاح ہو گیا. 3 ہی سارے جز ہیں نکاح کے: ایجاب و قبول، عورت مرد کا قبول کرنا ایک دوسرے کو، حق مہر کا تعین کرنا، اور 2 مرد گواہوں کا ہونا، مسلمان عاقل بالغ مرد گواہوں کو. یہ نکاح مکمل ہو گیا. حق مہر کا خرچہ بیچ میں ہے، باقی کوئی خرچہ نہیں ہے. تو یہ سوال اگلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلام مخالف رسمیں ہم میں آ کیسے گئی؟ یاد رہے اسلام یہاں پہ آیا تو اس وقت یہاں پہ ہندو دھرم تھا، ہندو مذہب تھا. ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں سے اللہ کی توفیق سے اسلام میں داخل ہوئے، لیکن وہ اپنے ماحول اور اپنی رسموں سے جان نہ چھڑا سکے. انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، بتوں کا تو انکار کر لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اقرار تو کر لیا، لیکن رسموں سے جان نہ چھڑا سکے. وہ رسمیں آج بھی ہندوانہ رسمیں جاری ہیں. آج بھی مہندی کے نام پر، آج بھی برات کے نام پر، آج بھی جہیز کے نام پر، آج کتنی ہی رسمیں ہیں. ہم نے اسلام میں نکاح کو مشکل بنایا، اسلام نے ہمارے لیے نکاح کو آسان فرمایا تھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. ایک بہت بڑی مثال پیش کی جاتی ہے. عموماً مثال دی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کچھ سامان دیا تھا. وہ دینی طبقہ جہیز کی مخالفت کرتے کرتے سلائٹ ہلکے موڈ میں یہ بات کر کے اس کو سنت بھی ثابت کر کے چلا جاتا ہے کہ جی یہ سنت طریقہ ہے. پہلی بات، حضرت علی باہر سے نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے. جناب ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی، تنگ دستی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ذمے لے لیا تھا کہ اس کی پرورش خرچہ میرے ذمے ہے. اگر بالفرض کرتے بھی بنا کر دیتے تو وہ ان کی باپ کی حیثیت سے ذمہ داری تھی، لیکن یہ بھی نہیں کیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہونے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا علی تیرے پاس مال کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں میرے پاس، تو ایک گھوڑا ہے اور ایک یہ میری زرہ ہے. تو فرمایا زرہ بیچ ڈالو. زرہ کس کا ہتھیار ہے؟ جہاد کا ہتھیار ہے، اسلام کا ہتھیار ہے، دین کا ہتھیار ہے. شادی کے لیے اس کو بچوا دیا. حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے کہا زرہ بیچ دو، ضروریات پوری کرنی ہے، شادی کی نکاح کی ضروریات پوری کرنی ہے. آج کا مرد کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اپاہج ہو گیا؟
मोहब्बत रसूल में, मोहब्बत अहले बैत में, मोहब्बत सहाबा के गुण गाने वाले, गीत गाने वाले, जब सुन्नत की बात होती है तो मिर्गी पड़ जाती। ये क्या हो गया? जब दीन की बात होती है, हक की बात होती है, सच की बात होती है, कुछ कुर्बानी की बात होती है तो मुसलमान भाग खड़ा होता है। गर्मी है, मुझसे रोजा नहीं रखा जाता। क्या हो गया है? नाम निहाद इस मुसलमान बन गए हम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली जीरा बेच डालो। अब जीरा बेची जा रही है तो वो जीरा बिकी 480 दिरहम में, और खरीदी किसने? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बोली बढ़ा बढ़ा कर ऐसे ही उन्होंने खरीद ली। 480 दिरहम का अदा करके फिर जीरा भी तोहफतन हजरत अली को दे दी कि ये मेरा हदिया है आपको। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, उनके ईमान की क्या, उनकी क्या बातें करते हो? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह ने गवाही दी कि आपस में बड़े रहीम और मोहब्बत करने वाले हैं साहबा। तो 480 दिरहम की जीरा बिकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, दो और साहबा को बुलाया, उसमें से 240 दिरहम उनको दिए कि ये एक चक्की, एक बिस्तर, एक सिराना, तकिया और ऐसे ही थोड़ा सा सामान जिसको आप जहेज कहते हैं कि घर बसाने के लिए घर की जरूरियात, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो घर की थी, फरमाया वो खरीद लो। बाकी जो 280 दिरहम बचे वो कुछ कपड़ों में और कुछ हक महर में मुकर्रर हुए। इस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हुआ। तो जिहाद जो उस जमाने में अंदाजा लगाए जिहाद कितनी जरूरत थी और तलवार और ज़िरा कितनी बुनियादी जरूरत थी इंसान की, उस बुनियादी जरूरत को भी बेचकर घर आबाद किया है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। आज का मुसलमान पराए माल पर आंख लगाए बैठा है। सही है मुस्लिम, बुखारी, तिरमिज़ी हदीस की किताबों में, काफी किताबों में, ये तकरीबन सारी किताबों में हदीस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन्नल मराता तुनकाहु लिअरबाइन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि औरत से शादी की जाती है 4 बातों की वजह से। औरत से शादी की जाती है, यानी जो रिवाज है, जो जमाना चल रहा है, उसमें 4, कुछ में 3 आया, अमूमन 3 की बातें मैं करता रहा हूं। आज मैं बुखारी मुस्लिम की जो रवायत है उसकी बात कर रहा हूं। फरमाया औरत से शादी की जाती है 4 बातों की वजह से। 4 वजूहात है जिनकी बिना पर औरत से शादी की जाती है। ले मालेहा, उसके माल की वजह से, वाले जमालेहा, उसकी खूबसूरती की वजह से, वाले नसाबेहा, उसके खानदान की वजह से, वाले दीनेहा, उसके दीन की वजह से। अलैका बिज़ात दीन तारिबत यदा का, साहबी को कह रहे हैं तेरे हाथ खाक अलूदू, तो दीन वाली को चुनना, दीन वाली को तरजीह देना। जब अल्लाह के नबी ने माल वाली को छोड़ ही दिया है तो जहेज वाली कहां से आ गई? और जहेज की हौसला शिकनी तो ऐसे होनी चाहिए मुसलमानों में कि लड़की वाले दे रहे हैं तो वो इनकार करें, ना भाई हमने लेना ही नहीं है, इस्लाम में है ही नहीं है। घर तो मर्द का है, घर तो लड़के का है, और अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली है। और देखो कमाल, देखो जब बाप फौत होता है, उसके बेटा और बेटी है, तो वरासत में ज्यादा हिस्सा बेटे को मिलता है, बेटी को मिलता है। याद रहे इस्लाम में औरत पर, लड़की पर कोई माली जिम्मेदारी नहीं डाली गई। सारी माली जिम्मेदारी या बाप पर है, या भाई पर है, या खामद पर है, या उसके बेटे पर है। औरत पर कोई माली जिम्मेदारी नहीं है। जब उसको वरासत में हक भी बराए नाम दिया, छोटा सा माल दिया औरत को, लड़की को, पता है औरत अगर बेवा हो जाए तो खामद की जायदाद में उसका 8वां हिस्सा है, और अगर मर्द की बीवी मर जाए
तो उसका चौथा या आधा हिस्सा है। हर जगह मर्द का ज्यादा हिस्सा है, इसलिए कि जिम्मेदारियां सारी ही अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, जिम्मेदार है ही मर्द सारा। औरत के जितने मामलात हैं, उसके माली मामलात है, खर्चा मर्द के जिम्मे, उसकी हिफाजत का जिम्मा है, जिम्मेदार मर्द है, उसके मामलात चलाने हैं, सारे जिम्मेदार मर्द है। इसीलिए तो फरमाया आयत के आखिरी हिस्से में अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, और ये अल्लाह ताला ने जो फजीलत बख्शी है, मर्द को जिम्मेदारी दी है, मर्द को जिम्मेदार बनाया, कव्वाम बनाया, हुक्मरान बनाया, सरदार बनाया, निगहदार बनाया, ये अल्लाह फरमाता है दो वजह से है, मर्दों के जिम्मे दो वजह से, बिमा फज़्ज़लल्लाहु बादहुम अला बाद, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फजीलत बख्शी है मर्दों को औरतों पर। ये तो इसमें मर्द का कमाल को नहीं, ये अल्लाह की अता करदा फजीलत है। आगे मर्द का जो हिस्सा है इस फजीलत में, अपनी सरदारी कायम रखने में, वो क्या है, व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, मर्द इसलिए औरतों के सरदार हैं, मर्द इसलिए औरतों के हुक्मरान हैं कि मर्द अपना माल उन पर खर्च करते हैं। और मर्द अगर आगे से जहेज ले रहा है तो सरदारी कहां गई, मर्द की सरदारी तो खतरे में पड़ गई। फिर हम कहते हैं वो बीवी थल्ले लगा आया जी, कहते हैं वो तो पहले दिन से लग गया, जब उसने जहेज कबूल कर लिया, जब वो मोटरसाइकिल गाड़ियां मांगने लग गया, जब वो माल की लिस्टें देने लग गया, जब वो फरमाइशें करने लग गया, तो नीचे तो लग गया, वो अपना सर उसने झुका दिया। अब वो तो ऐसे हालात होते हैं कि जनाब शादी के दिन दूल्हा साहब लड़के और कपड़े भी लड़की वालों के होते हैं, तोहफा है ऐसी ऐसी मर्दानगी पर। ये तो मर्द की मर्दानगी पर आर है कि वो लड़की का मोहताज बना फिरता है, जिसको अल्लाह ने कमजोर बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी सारी इस पर डाली थी। वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, अल्लाह ने कहा तुम्हारी सरदारी कायम ही इसी वजह से है कि तुम अपना माल इन पर खर्च करते हो। जहेज के मामले में ज्यादा और हक महर के मामले में शरीयत दिखाने लग जाते हैं जी, वो 32 रुपए बनता है शरीयत के हिसाब से। यही सवाल है आज का कि हक महर को हल्का करते गए, थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। जहेज को बढ़ाते बढ़ाते हक महर वैसे ही खत्म हो गया, उसकी हैसियत ही खत्म हो गई, उसकी अहमियत ही इतनी कम कर दी, इतनी घटा दी कि वो अब उसका जिक्र ही सरसरी होता है, उसका जिक्र जाने दो यार, थोड़ा सा रख लो। बोलने वाले भी ऐसे, इसमें कोई शक नहीं कि थोड़े हक महर में बरकत रखी गई शरीयत में, लेकिन जहेज की जिम्मेदारी लड़की पर नहीं है। यह हिंदुआना रस्में थी, इसलिए वजह इसलिए थी कि हिंदू वरासत में लड़कियों को हिस्सा नहीं देते थे, उनका हिस्सा ही नहीं था कानून में। वो उसकी शादी के वक्त तोहफे तहफ जहेज की सूरत में दे देते थे, फारग कर देते थे कि तू हमसे फारग है, आज से हमसे तल्लक खत्म। अब मरेगी जिएगी उसी खामद के साथ, अगर जिंदा रहेगी तो उसके साथ, और अगर मर गया खामद तो बाज़ औक़ात खामद के साथ उसको जला दिया जाता था, जिसको सती करना कहते हैं। जिंदा बीवी को खामद के साथ जला दिया जाता था, और अगर जिंदा रहती थी तो शादी नहीं कर सकती थी, पिछलों से कोई तल्लक नहीं होता था, उनकी थी। इस्लाम ने ये सारी रस्में खत्म कर दी। शादी ब्याह में, निकाह में इस्लाम में एक ही खर्चा है, और वो खर्चा औरत को दिया जाएगा हक महर की सूरत में, लिया नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से निकाह किया जाता है माल की वजह से, या जमाल की वजह से, या खानदान की वजह से, या दीन की वजह से। तुमने दीन वाली को तरजीह देनी है। जब हमारी तरजीह में दीन वाली लड़की ना रही तो घरों से दीन निकल गया। हमारे घरों से, अब हम कहते हैं ना जी हमारे घरों से दीन कैसे निकला, ऐसे निकला। ऐसे ही जहेज के मौजू पर पिछले हफ्ते एक साहब से मेरी बात हो रही थी, तो ऐसी बातें हुई तो मैंने अपनी एक हसरत का तज़किरा किया, काश मुझे मौका मिलता ये
تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا ہے, مجھے موقع ملے گا میں انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری کروں گا, میں جہیز کے بغیر کروں گا, خود بناؤں گا, کمرہ اس کا سجاؤں گا, ساری ضروریات پوری کروں گا, اور لڑکی والوں سے کہوں گا کہ صرف آپ کی بیٹی چاہیے بیٹے کے لیے, باقی آ کر دیکھ لو سب کچھ موجود ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی زرہ بیچ کر اپنی ضروریات خرید سکتے ہیں تو میں اور آپ اپنی ضروریات کیوں نہیں پوری کر سکتے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پیاری ہے, نبی کی سنت پیاری ہے, یا ہندوؤں کا طریقہ پیارا ہے؟ اور الٹا ہو گیا, جہیز میں نہیں دینا تھا اسلام میں, وراثت میں دینا تھا. ہم جہیز دینے لگ گئے ہندوؤں کی طرح, وراثت روک لی ہندوؤں کی طرح. اب مجھے بتائیں ہم کون سی خدمت دین کی کر رہے ہیں؟ جہیز دے رہے ہیں جو ہندوؤں کا کام ہے, اسلام کا کام. میں آپ کو 5 کام عموماً بتاتا ہوں, اسی بات پر آج اینڈ کرتے ہیں کہ اس میں تو اختیار ہی کو نہیں. ہمیں کفر کے مقابلے میں اسلام ہماری مجبوری, ہم نے آنا ہی آنا ہے, اور شرک کے مقابلے میں توحید ہماری مجبوری ہے, اس کے علاوہ چارہ کار ہی نہیں ہے, اور بدعت کے مقابلے میں سنت ہماری مجبوری ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو یہ جہیز اور مہندی اور یہ رت جگہ اور یہ مانجا اور تیل اور گھڑولی, یہ سارے بدعتیں ہیں. سنت کو مٹا دیا انہوں نے, جو حضرت علی کی شادی کی سنت تھی اس کو ختم کر دیا. سنت یہ ہے کہ لڑکا سارا مال دے, خرچہ لڑکا کرے گا, لڑکی نہیں کرے گی. جبکہ یہاں پہ وہ لڑکا جو ہے وہ اپنے ڈشکروں کی جماعت لے کر بارات میں 500 بندے لے کر پہنچ جاتا ہے. ولیمے پہ 5000 بلا لو یار, خوف خدا کرو. ایک جہیز کی لسٹ ہے تمہاری, 400-500 لوگوں کی بارات لے کر تم جا رہے ہو, اور پھر اس کے اوپر مزید شادی ہال کو پانی پات کا میدان بنایا ہوتا ہے, بم باری ہو رہی ہوتی, جیسے قتل غارت کر کے اغوا کرنے, لڑکی بیانے نہیں آئے, اغوا کرنے آئے. یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ کون سا مسلمان ہے؟ کیا یہ سارا رویہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان کا نکاح ہو رہا ہے؟ مسلمان کا نکاح مسجد میں ہونا تھا, مسلمان کا نکاح سادگی سے ہونا تھا, مسلمان کا نکاح مختصر ہونا تھا, مسلمان کے نکاح میں دکھاوا نہیں تھا, مسلمان کے نکاح میں سنت مطلوب تھی. سنت مطلوب تھی کہ میں نبی کی سنت میں نکاح کر رہا ہوں, میں اپنی نظر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نکاح کر رہا ہوں, میں نیک اولاد کے حصول کے نکاح کر رہا ہوں, میں اپنے سکون کے لیے نکاح کر رہا ہوں. 4 چیزیں جو ارادے میں ہونی چاہیے. اور لڑکی میں مطلوب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا دین کے بعد خوبصورتی کے بعد اس کا خاندان کے بعد اس کا نسب اور پیشہ اور ساری ضروریات چیزیں. 8 چیزیں علماء نے گنوائیں. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کو قوام بنایا گیا ہے. یہ ذمہ داری, ساری مالی ذمہ داری, میں نے کہا نا کہ شادی میں ایک ہی خرچہ حق مہر کا, وہ کون ادا کرتا ہے؟ اور اگر جہیز بھی لینا تو لے لو جتنا دے لے, لیکن اپنی جیب سے دو. پھر مزہ تو آئے نا, تم اپنی جیب سے 5 لاکھ دو کہ جی یہ جہیز بناؤ لڑکی کا, ہمارے گھر میں یہ آنا ہے. چلو اپنے گھر میں پہلے نہیں بنا سکتے, اپنا گھر اگر سنت کے مطابق آباد کرنا ہے تو پہلے گھر میں ضروریات پوری کر کے پھر لڑکی بہنے جاؤ. اسلام میں حق مہر تھا, ہم نے حق مہر کو ختم کیا, جہیز شروع کر دیا. اسلام کی ضد, اسلام کا الٹا ہو گیا. شریعت میں لڑکی پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالے گی, مرد اپنی حیثیت کے حساب سے جتنا خرچہ کرے گا مرد کی ذمہ داری ہے. اور آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مثال میں آپ کو بیان کر چکا ہوں وہ, اور سورہ نساء میں الرجال قوامون علی النساء کے باب میں ساری ذمہ داری مردوں پر اللہ نے ڈالی ہے, مالی ذمہ داری. تو نکاح کی ذمہ داری بھی یہ اللہ کی طرف سے مرد پر ہے کہ جب نکاح کرو تو ان کے حق مہر ادا کر دو. یہاں پہ تو الٹا نظام ہو گیا.
जो जहेज है वो नकद वसूल, नकद से भी पहले, रुखसती से कितने दिन पहले उठाते हैं। हाँ, जहेज रुखसती से भी पहले, और हक महर दे देंगे जी, दे देंगे, वो बाद में देंगे, हक महर बाद में देंगे, और जहेज रुखसती से भी पहले। ये कौन से इस्लाम की खिदमत मुसलमान कर रहा है यार? दीन से कितने दूर हो गए हम। और एक रवायत है जिस पर आज की बात मैं खत्म करता हूं। एक हदीस पाक, एक रवायत है, मैंने पढ़ी, यहां पे लिखी हुई अभी भी, कि जिस शख्स ने शादी की, निकाह किया और हक महर कहा दे दूंगा बाद में, हक महर कहा कि दे दूंगा बाद में, और इरादा नहीं है देने का, खैर है, कोई नहीं खैर है, फरमाया वो जानी है। जिसका इरादा नहीं हक महर देने का, वो जानी है। हक महर बाद में, जहेज रुखसती से भी एक हफ्ता पहले। तुफ है ऐसी हमारी मर्दानगी पर कि हम कमजोर औरतों से उनका खून निचोड़ रहे हैं, उनकी चमड़ी अपने नाखूनों से उतार रहे हैं, और ये भी किसी और की नहीं, ये मेरी आपकी बेटियां और बहनें हैं। ये मुश्किलात मेरे और आपके लिए किसी और ने नहीं पैदा की, ये हिंदुओं ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने नहीं पैदा की, ये मेरी और आपकी खुद पैदा करता है। अगर मुझे और आपको अपने दीन का पता होता, अपने नबी की सुन्नत का तरीका मालूम होता, तो हम इन सारी रसूम से, मुश्किलात से जान छुड़ा सकते थे, आज भी छुड़ा सकते, अगर इधर बैठे बैठे हम इरादा कर ले। आज भी मौका है। इस्लाम में दरवाजा बंद नहीं होता, तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है। जब भी तौबा करो, जब भी तौबा करो, जब भी तौबा करो, तौबा करने पर अल्लाह को खुशी होती है। तो आज ही इरादा कर लो, जिनके बेटे हैं, खास तौर पे जिनके बेटे हैं, कि हमने जब अपनी बहू ब्याह कर लानी है तो जहेज नहीं लाना, जहेज खुद बनाकर घर आबाद करके बेटे के लिए बीवी लानी है, और दीन वाली लानी है। उसके माल पर नजर नहीं रखनी, उसकी खूबसूरती पर नजर नहीं रखनी। अगर दीन है तो दीन के बाद खूबसूरती बड़ी नेमत है, अगर दीन के बाद खूबसूरती के बाद माल है तो माल बड़ी अच्छी चीज है, और अगर इन तीनों के बाद खानदान भी अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले दीन। अल्लाह ताला मुझे और आपको आसानियां अता। इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक की असर के बाद, असर की नमाज के बाद इसी जगह पे दरस कुरान होगा, दीन को समझने के सिलसिले में। अल्लाह हमारी तरफ से ये कोशिश कबूल फरमाए। सब आइए, कोशिश कीजिए दीन को सीखने के लिए, समझने के लिए। आमीन या रब्बल आलमीन।